I request her to please So I'm deliver half this. doctor. Half doctor. Full doctor. And she is having a vast experience in this department, so she will share her experience with you people. Good afternoon. Am I audible? First of all, I'm very thankful to Amarjit who has invited me for delivering a lecture over here. Actually, I'm the student of this university and I'm feeling proud for that. Really, I'm proud that I'm the student of this university. I have done, as Amarjit has told, half PhD, so I'm half doctor. So, so I will explain about this watershed management with special emphasis on Dal Lake catchment area. First of all, I will give you the introduction. Dal Lake has been the cradle of civilization of Kashmir and is regarded as a liquid heart of Srinagar. Whenever anybody outside the state or in the state talk of Kashmir, the first thing that came in the mind is Dal Lake and the Shikara ride, isn't it? So it's a from the heritage point of view, Dal Lake is very important. It has been an epitome of the Kashmiri civilization from times immemorial, and it's a large, shallow urban lake, hydroeutrophic lake. I think you must be knowing about eutrophication. Yes, When many nutrients go into the lake, eutrophication takes place. So it's a eutrophic lake. The lake is particularly well known for its lotus flowers of the species Neolumbo nucifera and floating gardens which are called as राध, जिनको हम राध बोलते हैं, जो आपने देखा होगा डल में floating gardens जिसमें वो cultivation करते हैं vegetables या fruits की भी mainly cucumber and melon cultivate करते हैं. उस पे जो लोग हैं जो who reside inside the lake, तो वहाँ उनका livelihood उस पे काफ़ी dependent है. So it's a very striking feature of the lake. लेकिन यहाँ से this is very harmful for the health of the lake because जब लोग इन floating gardens पे cultivation करते हैं तो वो तो pesticides and fertilizers use करते हैं उसमें, तो finally that drains into the lake. So eutrophication takes place and health of the lake gets deteriorated. So this is the overview of the lake area. Lake area is 25.76 square kilometers and its water expanse is 20.21. Catchment area, actually I am taking care of the catchment area of the lake. I am not directly dealing with the lake, I am dealing with the catchment area. जो डल का catchment area है, I am dealing with that because from the forest department एक ऑफिसर आता है यहाँ पे जो प्लांटेशंस, वो मैं आगे आपको स्लाइड्स में बता दूंगी. तो जो इसका कैचमेंट एरिया है दैट इज़ 337 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो यहाँ से आप देखिए कि डल का एरिया जो है दैट इज़ ओनली 25 स्क्वायर किलोमीटर्स और इसका कैचमेंट कितना वास्ट है, हाउ मेनी फोल्ड्स, इट्स मोर दैन इट्स वाटर एरिया. देन मेन इनफ्लो इसमें जो जाता है दैट इज़ तेलबल नाला एंड अदर इनफ्लोज आर Bottkal, Peshpo Nala and Miraksha Nala, and basins are Hazratbal Basin, Bodal and Nigeen, and its depth is maximum 4.5 and minimum is 0.43. Then what is watershed? आपने watershed के बारे में पढ़ा होगा. What is watershed? The land area that drains into the stream, lake or river affects the water quality in the water body that it surrounds. Watershed होता है, just imagine एक wash basin जिसमें हम हाथ धोते हैं, जो इसकी the walls of that basin that act as the catchment area, और जो इसका नीचे वाला portion जो होता है that is the water body. Water body may be pond, it may be lake, it may be ocean, any water body. लेकिन जो इसके walls होते हैं, consider that this is the catchment area of the water body. So अब आप यहाँ से समझ लीजिए कि it's very important to manage that watershed because उसकी जो हम जिस quality का water वहाँ से आएगा वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको, क्वालिटी ऑफ द वाटर बॉडी जो भी होगी वाटर बॉडी. देन व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट? इट्स मैनेजमेंट इज कंजर्वेशन, रिजेनरेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. एंड व्हाट आर दीज रिसोर्सेज? सॉइल, वाटर एंड बायोमास, है ना. तो मेनली हम यही तीन चीज़ें, मेनली सॉइल एंड वाटर को हम ट्रीट करते हैं क्योंकि जो ये वाटरशेड है इसमें एक तो रेनफॉल आता है,
जिसको हमें ट्रीट करना है, एंड इसका सॉइल का जो कंजर्वेशन है उस चीज़ को देखना है, हाउ वी आर यूजिंग दैट, वेदर जुडिशियली वी आर यूजिंग दैट थिंग, ठीक है. Then why watershed management? Why is it important? Loss of vegetative cover through various forms of erosion have resulted in such types of lands which are thirsty in terms of water and hungry in terms of soil nutrients. आप देखते हैं कभी फ्लड्स आते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो उससे क्या होता है, दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन टू व्हाट, इरोजन, है ना. इरोजन के बारे में पढ़ा होगा ना, टाइप्स ऑफ द इरोजन, फिर गलीज बनती हैं ऑल एंड ऑल. सो उससे क्या होता है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ वेजिटेटिव कवर एंड फाइनली जो सॉइल रहती है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वहाँ से ड्रेन आउट होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं. Then this watershed management has emerged as a new model for planning I'm sorry as a new model for planning, development and management of land, water and biomass resources. देखिए आप भी इंशाल्लाह जब आएंगे डिपार्टमेंट में, कभी आपकी पोस्टिंग भी होगी ऐसे कैचमेंट एरिया को ट्रीट करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हमें नहीं चाहिए, जस्ट अ प्रॉपर वे ऑफ प्लानिंग. हमें करना क्या है, पहले हमें एक मॉडल बनाना है, इसमें प्लान करना है कि हमें किस चीज़, कौन कौन सी चीज़ें करनी है. यहाँ पे मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको बताती हूँ. आप देखिए कि कोई मशीनरी इसमें यूज़ नहीं होती है, जस्ट अ सिंपल थिंग, not that sophistication and all, just a proper planning के तहत अगर हम करेंगे, it will be a successful model. Then what are the objectives, rather we can say components. Soil and water conservation is the main component of the watershed management. First, जैसे मैंने पहले भी बोला कि how we are using judicious use of soil and water. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं, मैं दिखाऊंगी आगे. वी आर मेकिंग सम स्ट्रक्चर्स इन विच वी कैन डू दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या वाटर टेबल को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे हमें वाटर रिटेंशन करना है वहाँ पे, ताकि जो वाटर टेबल है वहाँ का जो लेवल है वाटर का वो इंक्रीज़ हो जाए. देन क्रॉप मैनेजमेंट, देन ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम. आर यू नोइंग दैट ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, एक ही लैंड को डिफरेंट इसमें यूज़ करना, जैसे सिल्वे पास्चर है ना, सिल्वी एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री. फाइन, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं. देन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय ग्रोइंग ग्रीनरीज, दैट इज सिंपली द वेजिटेटिव मेजर्स, प्लांटेशंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इससे. देन मॉडरेट फ्लड्स, फ्यूल फॉडर एंड टिम्बर, दिस इज द प्रोडक्टिव यूज. आर यू गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स? देन वाटरशेड, अभी तक मैं बता रही थी जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट वाटरशेड. नाउ वाटरशेड मैनेजमेंट ऑफ डल कैचमेंट एरिया, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, हम क्या कर रहे हैं इसमें डल कैचमेंट में. बिकॉज हमारी जो कंट्री है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट, मैंने कहा ना इसमें एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तो डिफरेंट जगहों पे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारा यहाँ कैचमेंट एरिया है, मे बी वी आर गिविंग सम अदर ट्रीटमेंट. Maybe in the state of Karnataka they are giving some other treatment depending upon the soil, depending upon the topography. Yes, exactly, climate. So these things affect the planning and the strategy of that watershed management. Dal Lake is having the total catchment area of 337 square kilometers. This authority, that means LUCMA, erstwhile LAVDA, ठीक है, now it's LUCMA, Lake Conservation and Management Authority. This authority plants thousands of saplings every year in designated areas of catchment to prevent soil erosion and to prevent silt going down to the lake. हमारा मेन जो मोटिव है वो है जो सिल्ट आता है ऊपर से, बिकॉज जब रेन आएगा, फ्लड्स आएंगे तो उससे उसके साथ क्या आएगा, सिल्ट. अगर हम अगर हम प्लांटेशंस नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल मेजर्स नहीं बनाएंगे, देन जो सिल्ट है ना वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, पानी लेक में जाएगा ना. तो अल्टीमेटली क्या होगा, लेक शैलो बन जाएगा ना. कि अगर बहुत सारे एयर्स कंटिन्यूसली ऐड हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी, सिल्ट लोड ज़्यादा बढ़ेगा. देन बिसाइड्स प्लांटेशन, दिस LDA, short form of LAVDA, this also caters to the management of catchment area in terms of various structural works. एक तो plantations करते ही हैं, दूसरा क्या करते हैं, structural works, जैसे बहुत सारे structures बनाते हैं. We will see. This is the representation. This is showing that you can see the area of the Dal Lake. Dal Lake क्या है? Thank you so much, dear.
आप यहाँ पे देख सकते हैं द ब्लू कलर पोर्शन जो फिरोजी कलर का है ना, दिस इज डल लेक एंड इट्स एसोसिएशन विद द आचार लेक. और यू कैन सी द ग्रे कलर पोर्शन जो है, पर्पल कलर जो दिख रहा है, ये कैचमेंट एरिया है. आप देखिए कितना ह्यूज है ये. मुझे बताइए इससे क्या समझ आ गया आपको? डल लेक एक छोटी सी वाटर बॉडी है, जो इसका जो कैचमेंट एरिया है, हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वाटर इन द लेक. ठीक है ना? तो हमें, अगर हम इसको अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, दैट मीन्स वी आर ट्रीटिंग द वाटर बॉडी वेल. ठीक है ना? इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस पर. और जो ये ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज तेलबल नाला, जो मैंने कहा था दिस इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर टू द lake. This is Dashigaam National Park. This is the main catchment area of Dal Lake. 141 square kilometers. Out of that 337 square kilometers, 141 इसका आता है. बट नेशनल पार्क है, रिजर्व्ड है, इसमें हम कोई वर्क्स नहीं कर सकते हैं. बाहर जो आते हैं, जैसे दाशीगाम नाला आता है, बाहर हम वर्क्स कर सकते हैं, लेकिन इंटीरियर ऑफ द पार्क वी कैन नॉट डू एनीथिंग. देन दिस इज मेन्यू ऑफ द ट्रीटमेंट्स. क्या ट्रीटमेंट्स हम वहाँ पे करते हैं हमारे कैचमेंट एरिया में? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर. दिस इज LBCD, दिस इज लूज बोल्डर चेक डैम्स. सेकेंड इज Gabion check dam. Gabion check dams, this may be 1 tier, this may be 2 tier and 3 tier. That's why I have written here 1, 2 and 3. I will show you in the pictures. Gabion check dam समझ आ गया आपको? जो आपने देखा होगा ना स्टोन्स, उसको मैश वायर बाहर से लगा के देखा होगा आपने, काफ़ी जगह पे देखा होगा. इट्स दैट ओनली. देन रिटार्ड लाइन्स, इट्स अ कंक्रीट लाइन्स जो हम बनाते हैं कहीं, दीज आर ओनली फॉर द प्रोटेक्शन. जैसे नाला आता है, कभी फ्लो ज़्यादा है, तो जहाँ हम डिजिग्नेट करते हैं कि कहाँ पे फ्लो ज़्यादा आएगा, वहाँ पे हम अकॉर्डिंगली बना लेते हैं. हाँ, तो ये दिस इज़ रिटार्ड लाइन्स. देन कंटूर स्टोन वॉल, दिस इज़ अगेन द कंक्रीट वॉलिंग. देन वाटर टाइप. कंटूर स्टोन वॉल एक्चुअली आपने कंटूरिंग देखा होगा ना, जैसे फील्ड्स में होता है, वहाँ पे हम स्टोन्स लगाते हैं. फिर इन सब का एक ही मकसद है, सिल्ट को रोकना, स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉइल एंड टू कंट्रोल द सिल्ट. ये मेन एम्फेसिस है इसमें, जिसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. देन वाटर टैंक्स एंड फार्म पॉन्ड्स सेम है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं दोनों, सिर्फ साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है वाटर टैंक एंड फार्म पॉन्ड में. देन कंपोस्ट पिट्स. कंपोस्ट पिट्स पहले यहाँ पे नहीं बनाते थे, लेकिन 2019 में जब मैं आई तो हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये स्टार्ट किया कंपोस्ट पिट बनाना, बट इट हैज़ प्रूव्ड सक्सेसफुल. देन वेजिटेटिव मेजर्स में आता है एफॉरेस्टेशन ऑफ द न्यू एरियाज, दैट मीन्स प्लांटेशन. मुझे नहीं लगता आपको समझाना है ये. देन गैप फिलिंग. गैप फिलिंग में हम जैसे इस साल प्लांट्स लगाए, कुछ फेल हो गया, BUC अगेन अगले साल में उसको फिल किया. देन सिल्वी पास्चर, प्लांटिंग फॉर एस्थेटिक एंड ऑर्नामेंटल पर्पसेस. देन वेजिटेटिव हेजरोज, पास्चर डेवलपमेंट, ग्रेजिंग मैनेजमेंट, कंटूर ट्रेंचिंग एंड स्ट्रीम बैंक प्लांटेशन. ये सारे काम हम यहाँ पे करते हैं. दिस इज़ आवर मेन्यू ऑफ ट्रीटमेंट्स. नॉट नेसेसरी कि एक सीज़न में हम ये सारे ट्रीटमेंट्स देंगे, नहीं. अगर फॉर एग्जांपल हमने इस साल कुछ ट्रीटमेंट्स दिए, आउट ऑफ दीज जैसे 7-8 दे दिए, अगले में और देंगे, बट दिस इज़ द मेन्यू ऑफ ट्रीटमेंट्स. जो हमने एक, मैं बोल रही थी ना, एक मॉडल, एक प्लान बनाना होता है, ये ट्रीटमेंट्स हमारे उसमें सारे आ जाते हैं. ये भी एक रिप्रेजेंटेशन ही है, जो सेम मेन्यू ऑफ द ट्रीटमेंट्स. ये आप पिक्चर देखिए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज़ द वाटर टैंक, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. ये जो पानी इसमें जमा हो जाता है, इससे क्या फ़ायदा है? मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये क्यों हमने बनाया, इससे क्या फ़ायदा होगा हमें? या तो बारिश से पानी आता हो, ये वही है, बारिश का पानी ही है, बट फॉर व्हाट रीजंस? देखिए, हाँ एग्जैक्टली, कैचमेंट एरियाज़ में हमारे कुछ हैमलेट्स हैं, ठीक है. हैमलेट्स मीन्स हमारे कुछ विलेज हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं. मैं बताऊंगी, अगर कोई भी काम हमें करना हो ना, इंशाल्लाह आप कल को डिपार्टमेंट में होंगे, कहीं भी पोस्टिंग होगी, अगर चाहे टेरिटोरियल में हो आप, चाहे कहीं भी हो, सोशल फॉरेस्ट्री में हो, सॉइल कंजर्वेशन में हो, वेदर लावडा में, कहीं पे भी, अगर आपको कोई भी काम करना है ना, वेदर प्लांट्स ही क्यों नहीं लगाने हैं, फेंसिंग ही क्यों नहीं करनी है, लेकिन आपको उसके लिए लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी है, लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है. आप तब तक कुछ भी नहीं कर सकते.
मतलब ये हमें फील्ड में फिर एक्सपीरियंस आ जाता है कि लोगों का जो पढ़ा होगा पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, तो लोगों का जो वो ताउन है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हम इसलिए बनाते हैं लोगों का दिल जीतने के लिए। हम उनको बोलते हैं हमने जी आपके लिए ये बनाया, इसमें पानी स्टोर किया, वो तो बारिश से हो जाता है, तो वो जो उनके डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, जैसे उनके पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो उस चीज़ के लिए, या उनके पास ऑर्चर्ड्स होते हैं पर्सनल, वो अगर जैसे कभी खुशक साली हो गई, जैसे बारिश नहीं हुई, ये पानी वो आराम से उस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो उनका एक पॉजिटिव आ गया ना हमारी तरफ कि हाँ जी LCMA ने हमारे लिए ये बनाया, तो इन टर्न वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमें कहीं स्ट्रक्चर्स बनाने हो वो बोलते हैं आप बनाइए। तो लोगों का ताउन हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि चलो यहाँ पे लोग राज़ी नहीं है हम फिर भी बनाएंगे, नहीं, वी कैन नॉट डू दैट। सो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज़ द 2 टायर गैबियन। मैं बोल रही थी अभी 1 टायर 2 टायर एंड 3 टायर, दिस इज़ 2 टायर गैबियन। दिस डिपेंड्स, आप बताएंगे कि कहाँ पे कितना बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें स्टेबलाइजेशन चाहिए, कहीं पे ज़्यादा इरोड नहीं हुई है सॉइल, वहाँ पे हम 1 टायर भी बना सकते हैं। यहाँ पे उससे ज़्यादा हुई है, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा चाहिए सॉइल की, वी हैव मेड 2 टायर। अगर ज़्यादा इरोजन होता होगा कहीं पे, वहाँ पे हम 3 टायर बने। जिससे सिंपल ना, ये स्टोन्स कवर्ड विद द मैश वायर, है ना, सिंपल। इसमें आपको कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लगी? दिस इज़ सिंपल, लोकली अवेलेबल सॉइल मैश लानी है, उसमें भी कुछ खास टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, दीज आर द अर्दन बैग्स, ये भी हम कैचमेंट में यूज़ करते हैं। दीज आर यूज्ड to control silt along the nala and to reduce the runoff. These bags are filled with locally available soil. ये बैग हमें 10 या 20 रुपए में, ये सीमेंट बैग जो होता है ना एम्प्टी, वो हम लाते हैं, उसमें लोकली अवेलेबल सॉइल जो वहाँ पे अवेलेबल होती है उसमें भर देते हैं 50 किलो, ठीक है, बैग, एक बैग में। यूजुअली जो नालाज हमें नीचे नीचे होते हैं वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। बट ये बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चरल मेजर है, सॉइल कंजर्वेशन मेजर है, जहाँ पे हमें सिल्ट कंट्रोल करने में बहुत मतलब हेल्प मिली है। द लाइफ स्पैन ऑफ दीज बैग्स इज अबाउट 2 to 3 years। प्लास्टिक तो है, बट जब हम ये डिटोरिएट होते हैं, लाइक अगर ज़्यादा बर्फबारी हुई या ज़्यादा बारिश, दिस डिपेंड्स अपॉन द वेदर कंडीशंस, ये फिर खुद ही डिटोरिएट होते हैं। इससे ज़्यादा पोल्यूशन बट अभी तक जो हमने, आपने सही पूछना चाहिए, कन्फ्यूजन्स जो होते हैं अभी तक जब मैंने देखा ना, इसमें क्या करते हैं, ऊपर से हम सॉइल डालते हैं फिर इसमें, और इसमें खुद ही घास आ जाती है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन होता है। बट ये जो है ना, ये बैग्स जो आप बता रहे हैं, अभी तक जो पुराने हैं ना वो मुझे दिखे नहीं। आई डोंट नो वेदर वो सॉइल में गए हैं, क्या हुआ है, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन ये भी एक हम लोकली अवेलेबल, मतलब ये हम यूज़ करते हैं, बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर्स भी सस्ता हो जाता है ये बाकी चीज़ों से। ये कंपोस्ट पिट्स जो मैं बता रही थी, दिस डिवीजन हैज स्टार्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट एट दिगनीबल हमारा एक कैचमेंट एरिया है, एंड दिस हैज़ प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल। ये हमने 2019 में बनाए थे, टोटल 18 बनाए थे हमने। तो अभी मैं मुझे लगता है 2-3 महीने पहले गई, इतना अच्छा कंपोस्ट बन गया था, इसका वर्म्स आ गए थे इसमें खुद से ही, इसमें कुछ एडिशन नहीं किया है, सिर्फ जो वहाँ पे जो हैमलेट्स में जो लोग रहते हैं उन्होंने गोबर एंड किचन वेस्ट जो भी था वो डाला है इसमें, और इसमें बहुत अच्छे वर्म्स आए हैं, बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट बना है। कोई हमें उस चीज़ में मतलब एक्स्ट्रा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही प्रॉब्लम हुआ इसमें, इसका साइज़ छोटा बन गया था, साइज़ इसका छोटा है। तो अब लास्ट ईयर हमने ये 206 बनाए, पहले हमने 8 बनाए थे, फिर 206 बनाए, और अभी हमारा प्लान है कि ये हम पूरे कैचमेंट एरिया में हम एक एक घर को एक एक ये दे देंगे। तो ये हमारा अच्छा सक्सेसफुल चीज़, क्योंकि हमने क्यों स्टार्ट किया, हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। हाँ, वो चीज़ भी है, क्योंकि उनको जब नाला मिलता है ना वो जाके उधर फेंक देते हैं, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था अमंग द पीपल ना, जो भी आउटसाइड द लेक रहते हैं, अलॉन्ग द पेरिफ्रीज या इनसाइड द लेक, उनको मैं बोलती थी कि स्टॉप द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स। वहाँ से उनका एक क्वेश्चन रहता था, फिर क्या यूज़ करें,
अगर ये नहीं करेंगे हमारी पैदावार कैसे बढ़ेगी वेजिटेबल्स की और बाकी चीज़ों की। तो उनका कुछ रिप्लाई का करना था ना, कुछ हमें सोल्यूशन देना था। तो देन वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, ये हमने उनको दिया। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हमने उनको बताया कि आपकी जो रेट है, जो आप सब्जियां उगाएंगे इससे, उसकी रेट आपको डबल आएगी, इवन ट्रिपल भी, क्योंकि ऑर्गेनिक है। तो दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। और मैं नहीं बोलूँगी 100%, टू सम एक्सटेंट दे हैव स्विच्ड टू दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब कुछ लोग तो मानते नहीं है, वो पूरी तरह तो नहीं हुआ है। यस, दिस इज स्टेबलाइजेशन ऑफ क्वायरी एट गणतल। पहले यहाँ पे क्वायरिंग होती थी, क्वायरिंग यू नो, वो निकालते थे स्टोन्स एंड ऑल। अब तो दिस हैज़ बीन नाउ कम्प्लीटली स्टॉप्ड, लेकिन कहीं कहीं पे जब थे तो दिस हैज़ बीन डन बाय इरेक्टिंग द गैबियन क्रेट। दिस इज़ द गैबियन क्रेट जो हमने इसके साथ ही बनाए। दिस इज सेम लाइक दैट जो अभी हम देख रहे थे। इससे स्टेबलाइजेशन होती है एंड दिस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। एनी कन्फ्यूजन्स टिल नाउ? This is contour bunding. This is also one of the structure which we are making there. This is the main objective of this bunding is to reduce the slope length. ये हम usually जहाँ पे ज़्यादा slope नहीं हो, starting में जब हम चढ़ने लगते हैं ना, तो starting में हम ये contour, this is also very easy. आप देखिए इसमें क्या किया है, simply soil उठा के उसको एक बंड की तरह बनाया है on a long stretch. तो इससे क्या हो गया, इससे एक तो सिल्टेशन कंट्रोल हो गई, सिल्टेशन रुक गई, और पानी का जो है दैट हैज़ बीन रिटेन्ड देयर, है ना। तो पानी भी इन्फिल्ट्रेशन इंड्यूस हो जाती है इससे। दिस इज़ ऑल्सो अ सक्सेसफुल स्ट्रक्चर, आई कैन से, सॉइल कंजर्वेशन मेजर। दिस इज़ प्लांटेशन। हमारे कैचमेंट एरिया में हम यूजुअली ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स लगाते हैं बिकॉज देयर इज़ नो शेड, नेकेड है टोटल। लेकिन कहीं कहीं हमने अभी पाइन स्पीशीज़ भी लगाए हैं एंड सक्सेसफुल ही रहा है। हमारा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, पोर्क्यूपाइन डैमेज हमारा बहुत ज़्यादा है इस बेल्ट में। अदरवाइज़ हमारा मुझे लगता है सारा कैचमेंट ही ग्रीन होता, लेकिन ये पोर्क्यूपाइन डैमेज काफ़ी ज़्यादा। अल्मस यूज़ करते हैं, एप्रिकॉट और रूबीनिया मेनली, ये स्पीशीज़ यूज़ करते हैं। फेंसिंग, पहले हम वुडन फेंसिंग करते थे, लोग इसी जो लोकली हमें अवेलेबल हुआ करती थी उससे। लेकिन दिस ईयर वी हैव स्विच्ड टू आयरन, एंगल आयरन फेंसिंग बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी, काफ़ी टाइम के लिए, तो वो थोड़ा सा चेंज किया। दिस इज़ कंटूर ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यूस ट्रेंचिंग, स्टैगर्ड ट्रेंचिंग। तो दिस इज मेकिंग ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डिप्रेशन और ट्रेंच और द लैंड सर्फेस इज डन टू अरेस्ट बोथ एक्सेस सर्फेस रन ऑफ एंड सिल्ट कैरिड विद इट। इसका मेन मकसद है टू रिटेन द वाटर, क्योंकि हमारा जो ये बेल्ट है पूरा, इसमें काफ़ी पानी की कमी है। जहाँ अगर आपने भी देखा होगा रॉकी है, पानी नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं पानी रिटेन हो जाता है। आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द प्लांटेशन इन दैट एरियाज, बिकॉज अगर हम ऐसे ही विदाउट दिस कंटूर ट्रेंचिंग हम प्लांटेशन करेंगे वो फेल हो जाएगी। तो अगर हम पहले ये करेंगे, आफ्टर 1 or 2 years पानी रिटेन हो जाएगा, वाटर टेबल बढ़ जाएगा, तो हम वहाँ पे प्लांटेशंस कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल भी रहेंगे। देन पास्टर डेवलपमेंट एट हाडूरा। हाडूरा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैचमेंट एरिया। ये हमने ऐसी सीड लगाया है और इसमें भी अच्छा खासा ठीक ठाक हमारा, क्योंकि जब ग्रास आ जाता है तो स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होती है ना, ऑब्वियसली। तो ये और हम स्कॉस्ट के साथ ही हमने आई थिंक 2-3 साल पहले एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे स्कॉस्ट इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी, इन्होंने हमें सीड दिया था, ग्रास सीड्स, जो हमने जो अमंग द विलेजर्स वहाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। वो भी एक पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है अमंग द विद द पीपल बाय LCMA। दिस इज़ अबाउट 20% रिडक्शन इन सिल्ट इनफ्लो फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी कैचमेंट टू द लेक। आप देखिए ये एक नाला आ रहा है, इसमें कितना गंद जमा हो गया है। पहले आप देखिए सिविक सेंस लोगों का, उसको छोड़ के अगर हमने ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता, ये अल्टीमेटली कहाँ होता अभी, डल लेक में। तो ये बनाने से ये यहाँ पे रुक गया, इसको फिर बाद में हम ड्रेज आउट करते हैं, ठीक है। तो कितना ये कंट्रीब्यूशन हो गया कि वहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर बना के, मतलब थोड़ा सा तो हो गया ना, चले 20% ही सही। अगर हम ऐसे ही कितने स्ट्रक्चर्स होंगे तो कितना रिडक्शन हो जाएगा, है ना। ये एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट डेटा है, कुछ नालाज का लिया है हमने। तो इसमें हमने देखा कि फ्रॉम द फर्स्ट 6 साल तक का लिया है। तो हमने जब देखा कि फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर जो सिलिटेशन है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, नॉट टू द फुल एक्सटेंट बट टू सम एक्सटेंट।
दैट मीन्स ये काम कर रहे हैं। ये हो गया जो हमारा मेन्यू ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है। नाउ अदर एक्टिविटीज़ बाय वाटरशेड मैनेजमेंट डिवीजन, मैं अपने डिवीजन की बात करूँ कि हम क्या करते हैं। और दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग विलेजर्स जो मैं अभी बता रही थी। दिस प्रैक्टिस इज डन बाय द डिवीजन वंस इन ईयर इन विच ग्रास सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विलेजर्स इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द सॉइल एंड ऑल्सो टू कंट्रोल द रन ऑफ। लोगों को हम बुलाते हैं और हमने 1-1 kg उनको सीड दे दिया, ठीक है, ग्रास सीड, कोई भी रेड क्लोवर, जो भी हमारे पास, जो भी मतलब स्क्वाश ने हमें दे दिया। इससे क्या हो गया, लोगों को तो हमने दे दिया एंड इन टर्न उन्होंने क्या दिया, जब ये ग्रास कहाँ पे उन्होंने ये सीड्स लगाए, अपने ऑर्चर्ड्स में जहाँ पे उनका लैंड था वहाँ पे। तो हाउ दैट हैज़ हेल्प्ड अस, स्टेबलाइज हो गई ना सॉइल। जब सॉइल स्टेबलाइज हो गई तो इरोजन कम हो गया, सिल्टेशन कम हो गया, है ना। सो इजंट इट द गुड आइडिया ऑफ दैट पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि लोगों का साथ हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। तो ये चीज़ें करने से, ये प्रैक्टिसेस करने से लोग हमारे हक में बोलेंगे, है ना, क्योंकि लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। देन दीज आर द अवेयरनेस प्रोग्राम्स अमंग स्टूडेंट्स, जो मैं बता रही थी कि दिस डिवीजन कंडक्ट्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन डल लेक due to which most of the villagers have now switched to organic farming. This is among inhabitants. इसकी मैं कहानी बताऊंगी। ये डल के अंदर एक मोहल्ला है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, औरतें एंड सारी। अब मैंने जो ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट की इनको बताने के लिए कि जो केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स है हाउ हार्मफुल दीज आर। तो वहाँ पे ये लोगों ने बोला ये क्या स्टार्ट किया, इनको पता नहीं था लावड़ा से हैं। तो मैंने कहा जी थोड़ा सा बोलना है। बोला ये हमने बहुत सुना है, ये बंद करिए। तो मेरे साथ में जो रेंज ऑफिसर थे, मैंने कहा शायद आज हमें मार पड़ेगी, इसलिए बेटर है यहाँ से भागना। अब भाग भी नहीं सकते थे। तो हमने बोला हम जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हैं, आप हमें बोलिए कि आपको चाहिए क्या, कौन से सीड्स आपको चाहिए, कौन से प्लांट्स चाहिए। मतलब इस तरह से टैकल भी करना पड़ता है। अदरवाइज जो ही मैंने ये खोला, इन्होंने बोला ये जी बंद करिए, ये हमने बहुत सुना है, आप लावड़ा से हैं। हमने कहा नहीं जी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, आप हमें बताइए आपको क्या क्या नीड्स हैं यहाँ पे। ये मैंने फिर कुछ भी नहीं वहाँ पे, ये इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का फिर मैंने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि हम पिटने वाले थे इस दिन, इसलिए मैंने फ़ोटो लगाई है ये कहानी बताने के लिए। देन मेजर्स टू टैकल इलीगल एक्टिविटीज़। अब यही नहीं है, समटाइम्स हमें पुलिस का भी काम करना पड़ता है। सो देयर आर समटाइम्स विगरस इंसिडेंट्स ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शंस एंड एंक्रोचमेंट्स इन द। आपने देखा होगा लावड़ा क्यों बदनाम है, सिर्फ इसी की वजह से कि ये सिर्फ तोड़ फोड़ करते हैं। तो क्या है कि कहीं पे जैसे कैचमेंट एरियाज़ में हमारे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कहीं पे मकान बन गया, कुछ भी। यूजुअली हमारा क्या होता है, सॉइल फिलिंग होती है इस साइड से, और नाला का ब्लॉकिंग करते हैं लोग ताकि उनका वो ज़्यादा लैंड कवर कर सके। लाल जी सारे इंसान। देन इट्स ऑपरेटेड बाय डिमोलिशन ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर्स। उसमें क्या करते हैं हम, फिर वो चीज़ अगर कंस्ट्रक्शन हुई हो उसको डिमोलिश करते हैं, अगर सॉइल फिलिंग हुई हो तो उसको उसको रिस्टोर करते हैं। तो हमारे पास डिमोलिशन के लिए एक एनफोर्समेंट विंग है हमारी इसमें अथॉरिटी में, जिसको 2 DSP हेड करते हैं। तो उनकी हेल्प से ये डिमोलिशन हम कर पाते हैं फिर, लेकिन हम करते हैं, ये चीज़ भी करना पड़ता है। देन रेस्टोरेशन ऑफ नालाज, जैसे मैंने कहा नाला को चोक किया, वहाँ पे फिलिंग किया, तो उसको रेस्टोर करते हैं। देन सीजर ऑफ द मटेरियल एंड व्हीकल्स एंड लॉजिंग ऑफ FIRs। ये पिक्चर है, दिस लेफ्ट हैंड साइड रेस्टोरेशन ऑफ नाला, ये वुलर ग्रार नाला है, इसको ब्लॉक किया था। देन वी हैव रिस्टोर इन आफ्टर 2-3 days हमने इस नाला को रेस्टोर किया। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस इज द डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर। ये कंक्रीटिंग हुई थी, मतलब एक रात में ये कंप्लीट करते हैं, समझ में नहीं आता क्या जादू करते हैं ये। रात में कंप्लीट किया और सुबह इसको हमने डिमोलिश किया। तो ये एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती है। दिस इज़ अथवास इनिशिएटिव। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर डल क्लीनिंग। अभी अप्रैल में स्टार्ट किया है हमारे ऑनरेबल LG ने, आपने देखा भी होगा, इसका बड़ा चर्चा है इसकी। तो इसमें thousands ऑफ पीपल हैव पार्टिसिपेटेड एंड टिल नाउ मोर देन 45 क्लीनिंग ड्राइव्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। इसमें हम डल के अंदर भी करते हैं डिवीडिंग, और डल के बाहर भी करते हैं अलॉन्ग द पेरिफेरीज, कैचमेंट एरियाज़ में। इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात कहूँगी कि नॉट ओनली फ्रॉम द स्टेट, ओनली फ्रॉम द UT,
आउटसाइड द यूटी भी हमें बहुत रिस्पॉन्स आया है इसका, केरला से, कर्नाटका से फ़ोन्स आते हैं कि हम भी इस इनिशिएटिव में आपका साथ देना चाहेंगे। मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ, आपका जब भी टाइम मिले आइए और हमारे साथ इस इनिशिएटिव में साथ दीजिए हमारा। आएंगे इंशाल्लाह। तो ये पहली पिक्चर है जहाँ पे हम, ये क्या दिखा रहा है और नहीं, पहली पिक्चर दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली, जस्ट किडिंग। हाँ, तो ये हमारा, ये डिबेटिंग करते थे हम इनसाइड द डल लेक, और ये बाहर भी हम कुछ ऐसी, ये अथवास के अंडर ही कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारे। आप लोग सोच रहे होंगे फाइनली कंक्लूजन आ गया, बच गए, है ना? बोर हो गए? मैं बोर करना भी नहीं चाहती थी। तो पार्टिसिपेटरी वाटरशेड मैनेजमेंट हेल्प अस इन लोकल इनोवेशंस फॉलोइंग ए बॉटम अप अप्रोच विद अ ब्लेंड ऑफ टॉप डाउन इनपुट। जैसे मैंने पहले ही कहा, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है, स्टार्टिंग से क्या करना है till top. Watershed management needs a low level of technology but a large amount of planning, survey and community participation. Very important. Community participation is, ये आप याद रखना, चाहे आप कहीं भी हो, लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कहीं पे आप प्लांट लगा रहे हो ना, है या पर खसन ये 4 वे इसने दिमाग बनाने की हिंद, फिर क्या करेंगे आप? मतलब ये इंसान बोलता है कि बन करो ये मैंने FIR वो ये, yes, you have to be the good politician, yes. Then at different levels to make the program need based. It should be socially acceptable. जैसे मैंने कहा, any program you are making that should be socially acceptable, eco friendly. Obviously eco friendly तो होना ही चाहिए, and sustainable. लॉन्ग रन में चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसी प्लानिंग की जो 1 साल तक चले तो अगले साल टाइम फेस, ऐसा नहीं। दिस शुड बी सस्टेनेबल, जो ईयर्स तक चले हमारा। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, या वही इसका पहला पॉइंट जो है द प्रॉपर प्लानिंग, कैसे हमें करना है। कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मशीनरी नहीं, नथिंग एट ऑल, ठीक है ना। देन हेल्दी वाटरशेड्स नॉट ओनली हेल्प प्रोटेक्ट वाटर क्वालिटी बट ऑल्सो प्रोवाइड ग्रेटर बेनिफिट्स दैन डिग्रेडेड वाटरशेड्स टू द पीपल एंड वाइल्ड लाइफ दैट लिव देयर। ठीक है, थैंक यू। I would like to request Professor Javed sir to present the movement of our. चलो ठीक। धन्यवाद। Thank you.